Hello viewers, welcome to my channel which is Learn and Gain. So in this video I'm going to explain the Indian Contract 8 1872. So let's start with the Indian contract, and in this video we will just go through the nature and kind of the contract. Like what Indian Contract Act 1872 defines the term contract under its section 2 subsection H as an agreement enforceable by law. मतलब ये बताता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के अंदर इन्फोर्स होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. मीन्स देर इज सम एलिमेंट्स ऑफ द like contract which we can say that its agreement is kind of a contract, like it will be enforceable by law. Like if there is any agreement between the two parties, and if they are not fulfill what they have promised to each other, then they can sue for each other in the court. So this law is applicable to all India except to Jammu and Kashmir. So next is elements of contract. So our contract consists two elements. First is an agreement and legal obligation. So agreement, section 2 subsection E, the act defines the term agreement as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. अब ये definition क्या बताती है? लॉ के अंदर ये बताया गया है कि एग्रीमेंट क्या होता है. जो भी प्रॉमिस या promises किए जाते हैं और उसके अंदर हम फॉर्म करते कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कंसिडरेशन मीन्स वट एवर वी एक्सचेंज व्हेन वी प्रॉमिस्ड एंड देर इज सम लाइक व्हाट द प्राइस वी पेड. सो इट्स अ कंसिडरेशन. सो हम प्रॉमिस करते जैसे ए एंड बी दो पार्टीज़ हैं, वो एक दूसरे के अंदर लाइक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं कि ए प्रॉमिस करता है कि बी को वो गुड सर्विसेज या गुड प्रोवाइड करेगा. ठीक है, और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है तो दोनों प्रॉमिस करते हैं. तो एग्रीमेंट के अंदर होता है एक्सेप्टेंस प्लस ऑफर. दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है ए बी को गुड्स डिलीवर करेगा. बी एक्सेप्ट कर लेता है वो चीज़ को एंड बी प्रॉमिस करता है कि ठीक है जब वो गुड डिलीवर्स करेगा तो जितना भी इसका कॉस्ट आता है लाइक 1500 या वट एवर द कंसिडरेशन देयर इज, सो वो पे करेगा जब गुड्स डिलीवर किए जाएंगे ए के द्वारा. तो इसलिए एग्रीमेंट के अंदर एक्सेप्टेंस होती है. बोथ पार्टीज एक्सेप्ट द व्हाट दे हैव promised to each other, and plus offer means they exchange something. We here in this example B get the goods from the A side and A gets the like price for delivering that goods to B. So let's start with the what meaning of the promise. So what is promise? So in the law 2 subsection B defines that when the person to whom the proposal is made signifies his assent. Assent means gives his acceptance. Thereto the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Means प्रॉमिस क्या होता है? सो मीन्स प्रॉमिस क्या होता है? जब कोई पर्सन प्रपोजल करता है और वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं, गिव हिज एक्सेप्टेंस. जब दोनों की तरफ से पार्टीज़ की तरफ से एक्सेप्टेंस आती है उस प्रपोजल के लिए, जो भी वो प्रपोजल एक दूसरे को ऑफर करते हैं और वो एक्सेप्ट किया जाता है, दैट प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. जब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को जो प्रपोजल देते हैं या एग्रीमेंट बनाते हैं और दोनों पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं, देन दैट becomes a promise. Then though both the parties promise to each other that they like do the activities yeah action what they have done in the at the time of the agreement. होप प्रॉमिस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे. एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, वैलिड, वॉइड, अनवॉइडेबल. सो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? फर्स्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है व्हेन देयर इज अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. in the agreement I have also cleared that agreement like made at the time of when there is acceptance plus offer. So offer and acceptance must be lawful offer and lawful acceptance. Both the parties like offer it to each other something and accept that the agreement, and that becomes an
contract. Second point is intention to create legal relations, means there must be an intention among parties by legal obligation. दोनों पार्टी जब एग्रीमेंट करते हैं तो उनके बीच में इंटेंशन होना चाहिए, मीन्स ए बी ने प्रॉमिस किया है कि वो डिलीवर करेगा और वो जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे तो वो उसे उसके लिए पे करेगा। तो इन केस जब ये एक्सेप्टेंस जो भी प्रॉमिस उन्होंने किया है अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो वो कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है देयर शुड बी सम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है, प्राइस पेड बाय अ पार्टी। सो देयर शुड बी अ गिव एंड टेक फॉर्मूला, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। Next is capacity of parties. Parties should be competent to contract, otherwise cannot be enforced by court of law. Means capacity of parties means when the both parties involved in the agreement and promise to each other, then they have like means parties are mentally able so that they think and decide what they are going to do. ओके, सो इट्स अ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, मतलब दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उसे फुलफिल करें। ये नहीं होना चाहिए कि जब किसी की मेंटल एबिलिटी नहीं है। When a person is mentally disturbed and he promised to other person that he will do that thing, then the other person cannot file a case or sue the other because he is not mentally able to think what they had done in the last in the previous agreement. सो जब भी एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टी मेंटली ही प्रिपेयर हों उसके लिए, तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कंसेंट मीन्स दैट द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पार्टीज जो भी एक दूसरे को समझाना चाहते हैं और एक दूसरे को जो प्रॉमिस करते हैं उन दोनों का सेम सेंस होना चाहिए। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि एग्रीमेंट जो भी बनाया है वहाँ पर एब्सेंस ऑफ कंसेंट हो। एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन फॉलोइंग सिचुएशन मीन्स फ्रॉड, जब उनके बीच में फ्रॉड हो, कॉर्जन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, जब अदर पार्टी मतलब बी ए को फ्रॉड के थ्रू कोई एग्रीमेंट बनाता है, वो उसे एक्सप्लेन नहीं करता सारी डिटेल। और कॉर्जन मीन्स होता है कि जब हम किसी को डरा धमका कर किसी चीज़ पर एग्री करते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस लेते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस करना ज़बरदस्ती। एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अपने एग्रीमेंट में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें ना दिखाकर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही हाईलाइट करना, सब चीज़ें डिटेल में ना बताना अदर पार्टी को। सो ये होता है फ्री कंसेंट। मीन्स जब भी एग्रीमेंट होगा वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, लेकिन जिस सेंस में आप ले रहे हो सामने वाला भी उसी सेंस में समझे और कोई भी कॉर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जब भी एग्रीमेंट बनता है तो जब भी एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हम जिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मैंने ए और बी दो पार्टीज आए और ए ने प्रॉमिस कर दिया बी को कि वो उसके लिए तारे चांद तोड़ के ले आएगा, तो इट्स नॉट अ लॉफुल, मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड लीगल होना चाहिए। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन means according to contract may be or can be oral or in a written form, but in some cases it is good to have a agreement in a written form which show at the time of the case. सो जब भी एग्रीमेंट हो, वैसे तो अलाउ है कि तुम ओरली भी और रिटर्न में भी ले सकते हो, बट इन सम केसेस में जो रिटर्न फॉर्म में है उससे ज़्यादा वैलिड माना जाता है और वो ही सही होता है। तो जो भी एग्रीमेंट हो वो इट शुड बी सम काइंड ऑफ रिटन फॉर्म which can be show at the time of the any situation. So next is possibility of performance, कि जब भी एग्रीमेंट बनाया जाए, हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो देयर शुड बी सम द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट परफॉर्मेंस। अब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें इस पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, उस पर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो लॉफुल नहीं होता और उसके लिए हम कहीं पे भी कोई केस नहीं कर सकते कोर्ट में। एंड नेक्स्ट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। अब गवर्नमेंट की तरफ से ही या लीगल अथॉरिटी के ही साइड
लीगल अथॉरिटी और गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई चीज़ अगर डिक्लेयर कर दी है कि वो वॉइड है, जैसे ड्रग्स का लेते हैं हम एग्जांपल, गवर्नमेंट ही ने मना कर दिया, अगर हम उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं माना जाएगा। सो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो गवर्नमेंट या किसी की तरफ से वॉइड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए। So next start with the kind of contracts. So point of view of enforceability, let's start with the point of view of enforceability, and this we will study with the valid contract. So valid contract क्या होता है? Where elements of a valid contracts are present. मैंने वीडियो में बताया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। सो अगर ये एलिमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं व्हेन द कंसेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। जब वहाँ वो फ्री कंसेंट नहीं होता, मीन्स जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोर्जन लाइक फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंट करके या डरा धमका कर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड मीन्स नॉट बाइंडिंग इन लॉ विच हैज़ नो लीगल इफेक्ट एट ऑल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होती है, उसे हम वॉइड कहते हैं। जो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं होता, लीगली अप्रूव नहीं होते। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट which is not capable of being enforced in a court of law because of technical defects like absence of writing, registration, etc. Unenforceable contract वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कोर्ट में हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो इस टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है मोड ऑफ क्रिएशन। सो मोड ऑफ क्रिएशन के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं व्हेन एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड मेड इन वर्ड, स्पोकन एंड रिटन। जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किए जाते हैं या एक्सप्रेसली हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं वर्ड में और रिटन फॉर्म में, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ एक्शन होते हैं। मीन्स जैसे ही इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे हम डीटीसी बस में सफ़र करते हैं दिल्ली लोकेशन पे, तो क्या होता है, अगर बस आती है तो हमें बस वाला एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं करता कि आपको उस पर चढ़ना है। जैसे ही बस आती है, आपके लोकेशन पर वो पहुंचाती है, तो आप बिना पूछे ही उस बस में चढ़ जाते हैं। तो ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर कोई एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया है कि आपको चढ़ना ही है और आपको वो डीटीसी बस वाला चढ़ाएगा ही स्पेशली। सो ये दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इट इज़ इन्फोर्स व्हेन एनी पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ समथिंग बट डजंट पे फॉर इट और द अदर पर्सन माइट हैव टू बियर द बर्डन ऑफ इट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को मैं इस तरीके से समझाती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल लाइक ए एंड बी, देयर आर टू पार्टीज। ए प्रॉमिस टू बी टू डिलीवर अ बास्केट ऑफ फ्रूट टू her house. A delivered that good to C rather than B. So C has received that fruit or basket and thought that it is kind of a birthday gift for him, like someone have given that to him. So C has consumed all kind of the fruits or whatever the goods was there in the basket. So he has consumed that. So when B found that they haven't received the good, so he asked the A and A so in this case when the court has to take decision, तो ए कोर्ट क्या डिसीजन लेगा कि सी को उसने जो भी कंज्यूम किए हैं वो बी के थे, तो उसे बी को या तो पे करना पड़ेगा या वो बास्केट उसे खरीद कर देनी पड़ेगी। सो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब यहाँ पे कोई लीगली ए और बी और सी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ना ही उन्होंने रिटर्न फॉर्म में किया था, बट ये क्वासी है।
होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया हो। जैसे ए ने ऑफर बी को प्रॉमिस किया था कि वो गुड्स डिलीवर करेगा, लेकिन वो बी की जगह उसने सी को डिलीवर कर दिया, और जब सी ने वो गुड पाए तो उसे लगा वो किसी ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया है तो उसने उसे कंज्यूम कर लिया। तो इस केस में जो है लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट क्वासी हो जाता है। यहाँ पे सी बी को पे करेगा, या वो फ्रूट की बास्केट खरीद के देनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, बट ये लाइक ये हो गया कि हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटेड एंड एक होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मीन्स व्हेन द बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव कंप्लीटेड हिज परफॉर्मेंस एंड देयर एक्शन। सो यहाँ पर जो भी दोनों पार्टीज होती है वो अपनी, जैसे ए ने ऑफ़र किया, बी ने ऑफ़र किया, दोनों ने प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे दी, तो यहाँ पर जब वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ भी उनके बीच में रजिस्ट्रेशन, साइन, एग्रीमेंट सब कुछ हो जाता है, कंसिडरेशन भी डिसाइड हो जाता है। एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बोथ दी पार्टीज या बोथ दी ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग। और हम कह सकते हैं किसी, जब दोनों ही पार्टी की तरफ से कुछ ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, या किसी एक पार्टी ने तो एग्री कर लिया, दूसरी पार्टी की तरफ से लाइक एक्सेप्टेंस या कुछ भी कंसिडरेशन या ऑब्लिगेशन अगर पेंडिंग है या आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट कंप्लीटेड। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आई हैड लाइक एक्सप्लेन टू यू इन दिस वीडियो। होप आपको ये समझ में आया हो। इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग पढ़ी थी एंड उसका नेचर पढ़ा और क्या क्या एलिमेंट होते हैं वॉइड लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको होप समझ में आ गया हो। दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ द लाइक we can say it's a brief discussion about the contract, what is the contract, what are the factors or elements of a valid contract and what type of contract are theirs। होप आपको इस वीडियो में मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।